Hello friends, welcome to Dev Defense Academy. And if you like our video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. The strongest people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Failure is not fatal and success is not final. In fact, failure is key to success. In today's video, we'll be talking about 10 important tips which have been specially penned down by the GTO himself for your short selection in the SSB. Let us first run you through these 10 important tips quickly and then we'll talk about each of them in detail. First point is to prepare well in advance in a group, which will make us more confident. Introspection, which is the second point. Deep introspection of yourself will help you in identifying your strengths and weaknesses. Third is to become a leader and not a follower. Display your leadership traits and all your OLQs. Fourth being team spirit and cooperation. Being helpful and friendly will make you a natural leader. Good communication skills. You can impress your GTO and influence other members of the group. You can motivate them and convince them. Sixth point is physical fitness and mental alertness. This will improve your military bearing and make you more confident. Body language. Be cool, calm and relaxed. You should always sit or stand smartly. This will help you to improve your reflexes and take action instantly. Ninth is good behavior, manners and etiquettes. This will make you popular and a natural leader. Ninth is liveliness. Having a smile on your face and being cheerful and enthusiastic will improve your personality. Last but not the least is to believe in yourself and your abilities and be confident. Always remember that you can do it and you will make it. Failure is not fatal and success is not final. For sure selection in SSB, prepare well in advance in a group. SSB इंटरव्यू में जाने वाले कैंडिडेट्स के बारे में प्रायः देखा गया है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स बिना किसी तैयारी के ही पहुंच जाते हैं, जिससे जानकारी के अभाव में तथा कॉन्फिडेंस न होने के कारण उनका सिलेक्शन एसएसबी के स्टेज 1 में नहीं हो पाता, जिससे वह निराश हो जाते हैं। लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक वेल नोन फैक्ट है कि स्टेज 1 में सिलेक्शन के लिए ग्रुप में तैयारी तथा प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तभी कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस विकसित हो पाता है और तभी उनका सिलेक्शन सरलता से हो पाता है। स्टेज 2 में प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू तथा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अलावा सभी अन्य टेस्ट फुल पब्लिक के प्रेजेंस में जैसे कि दूसरे कैंडिडेट्स के सामने लिए जाते हैं। इसी वजह से हमें इन सभी टेस्ट की प्रेपरेशन एक ग्रुप में करना चाहिए। इसमें हमें दूसरे कैंडिडेट्स की गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। स्टेज 2 के अंडर में जीटीओ द्वारा कंडक्ट कराए गए निम्नलिखित और टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, मिलिट्री प्लानिंग, ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, स्नेक रेस जो कि एक ग्रुप एक्सरसाइज होती है, और ब्रीफ चैट विद द जीटीओ जिसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती। जीटीओ के द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करने से कैंडिडेट सभी टेस्ट्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं तथा उनके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट्स में एक टेस्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे सेल्फ अप्रेजल कहते हैं। उस टेस्ट में कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में
तथा अपने दुश्मनों के बारे में भी जाने। ये सब डीप इंट्रोस्पेक्शन करके ही जाना जा सकता है। सभी कैंडिडेट्स से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे लोग उनके बारे में, जैसे कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स तथा उनके दुश्मन, उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने तथा अपने मित्रों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एवं शॉर्टकमिंग्स के बारे में जाने, क्योंकि one is always known by the company that he is into. Display of leadership traits and OLQs. दो प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जिनमें OLQ होता है परंतु उसे वे डिस्प्ले नहीं कर पाते, दूसरे कैंडिडेट्स जिनमें OLQ तथा लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं और वो डिस्प्ले भी कर पाते हैं। GTO के सभी टेस्ट्स में कैंडिडेट को अपनी OLQ या लीडरशिप ट्रेट्स को डिस्प्ले करना आवश्यक है, तभी उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है। GTO सभी कैंडिडेट से ब्रीफ चैट करते हैं। उसमें कैंडिडेट्स से अन्य कैंडिडेट्स के बारे में उनकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। इसमें बिना किसी झिझक के अपनी ओपिनियन देनी चाहिए तथा अपने सिलेक्शन हेतु की अपना कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। इसी प्रकार GTO के अन्य टेस्ट्स में हमेशा इनिशिएटिव लेने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही अपनी टीम स्पिरिट एवं कोऑपरेटिव नेचर को डिस्प्ले करना चाहिए। ग्रुप टास्क्स में हमेशा दूसरे कैंडिडेट्स की मदद करनी चाहिए तथा कभी किसी कैंडिडेट को हतोत्साहित या डिस्करेज नहीं करना चाहिए तथा किसी भी ग्रुप टास्क्स में कभी रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में आपस में झगड़ा करने वाले कैंडिडेट्स से पूरे ग्रुप के वॉश आउट होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर की टू सक्सेस। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स SSB में हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर है। बिना वाक्पटुता या स्पीकिंग एबिलिटी के सिलेक्शन हो पाना संभव नहीं हो पाता। यदि हम बेझिझक व विश्वास के साथ अपनी बात कह सकते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तथा हम ग्रुप के अन्य सदस्यों को न केवल मोटिवेट या कन्विंस कर सकते हैं बल्कि उनको इन्फ्लुएंस या प्रभावित भी कर सकते हैं, जो कि SSB में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप GTO के सारे टेस्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तथा आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल अलर्टनेस। SSB में सिलेक्शन के लिए एक अच्छी मिलिट्री बियरिंग का होना आवश्यक है। NDA या IMA कैडेट्स को आप दूर से ही पहचान सकते हैं। SSB में सिलेक्शन के लिए आपका NDA या IMA कैडेट्स की तरह दिखना आवश्यक है। मिलिट्री बियरिंग किसी भी कैंडिडेट के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फिजिकल एक्सरसाइजेस से न केवल आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाती है बल्कि आपकी मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ जाती है। आप दूसरे से स्मार्ट दिखते हैं तथा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिजिकली फिट कैंडिडेट्स ही 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स 3 मिनट में कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वे सभी ऑब्स्टिकल्स बिना रुके 3 मिनट में कर लेंगे, उनके चेहरे पर एक अनोखा कॉन्फिडेंस दिखता है, जबकि जो कैंडिडेट्स फिजिकली वीक होंगे उनके चेहरे पर घबराहट रहती है तथा चोट लगने का डर हमेशा सताता है। स्नेक रेस में भी GTO कैंडिडेट्स की लीडरशिप स्किल्स तथा OLQ देखते हैं। दोनों टेस्ट्स कैंडिडेट के सिलेक्शन तथा मेरिट टेस्ट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बॉडी लैंग्वेज, शरीर के हाव भाव तथा अपने चेहरे की अभिव्यक्ति से भी हम काफी कुछ कह सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी मिलिट्री बियरिंग, चेहरे पर स्माइल तथा हमारे बैठने एवं चलने का ढंग हमारी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। कैंडिडेट्स को रिलैक्स्ड पोजीशन में और बिना किसी तनाव के बैठना चाहिए। GTO के सभी टेस्ट्स में कैंडिडेट को अपनी बात सरल ढंग से जोर से कहना चाहिए। किसी भी बात को लाउडली या बुलंद आवाज में सभी कैंडिडेट्स की तरफ देखते हुए कहने से हमारा कॉन्फिडेंस
का पता चलता है। ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट एवं मिलिट्री प्लानिंग में बोलते समय कैंडिडेट से आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कैंडिडेट की मिलिट्री बियरिंग, उनके चलने, बैठने एवं बात करने का ढंग भी बॉडी लैंग्वेज में आ सकता है। हमारे चेहरे की स्माइल तथा बोलने एवं ग्रीट करने का ढंग हमारा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस शो करता है। नेचर, बिहेवियर, मैनर्स एंड एटिकेट्स, ये सभी हमारे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अभिन्न अंग है, जो कैंडिडेट्स का शालीन स्वभाव, कर्टियस व्यवहार एवं गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स उसके परिवार के बैकग्राउंड तथा अपब्रिंगिंग के अनुसार होता है। परंतु प्रयास करके इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। हम अपने नेचर, बिहेवियर तथा मैनर्स एंड एटिकेट से ग्रुप के अन्य कैंडिडेट्स को प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यदि आपका नेचर एवं बिहेवियर अच्छा है तो सभी कैंडिडेट्स न केवल आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे बल्कि विलिंगली आपको अपना लीडर मान लेंगे, जो कि एसएसबी में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लाइवलीनेस एंड चीयरफुलनेस, हमारे चेहरे पे स्माइल हमारे कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करती है। हम सभी चीयरफुल कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं, जो कि पूरे माहौल को खुशनुमा बना दे। काम का बोझ कितना भी हो, समस्या कितनी भी विकराल क्यों ना हो, एक अच्छा लीडर आते ही पूरे माहौल को बदल देता है तथा अपने मिजाज से पूरे ग्रुप में जोश और इंथुजियाज्म भर देता है, जो कि किसी भी मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। कूल माइंडेड होकर या ठंडे दिमाग से हम किसी भी विषम परिस्थिति में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसे पॉजिटिव माइंडेड कैंडिडेट्स को सभी लाइक करते हैं तथा उनको विलिंगली अपना नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। Always remember, those who win are those who think they can. On a similar note, if you think you can do it, you will surely be able to do it. यदि हमको अपने आप पर विश्वास तथा अपनी योग्यता एवं कर्म क्षमता पर भरोसा है तो एसएसबी में आपका सिलेक्शन होना तय है। एसएसबी में वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जिनको यह विश्वास हो जाता है कि वे सेलेक्ट हो सकते हैं। Thank you friends, this is all from our side today. If you like our video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon.